Today's topic is today's topic that is missing term figures. Okay, फिगर टाइप से कोई टेबल बना होगा, उसमें आपको मिसिंग टर्म निकालना पड़ेगा. दैट इज फॉर एग्जांपल नंबर 1, दैट इज 6 9 15 8 12 20 4 6 क्वेश्चन मार्क. तो व्हाट इज दिस मिसिंग टर्म? बताओ आप लोग. यूज एनी कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया नंबर सीरीज वाला, उसको यूज करके आप लोग बताओ. If you are able to solve this question, please solve the next question also. That is 3C 27D 9E 7I 21K 3M 4D question mark 7J. Okay. Find the these सर फर्स्ट missing का आंसर terms. 10 आता है. Yes, first answer 10. Is everybody okay with 10? यस सर. Yes, Raj, Sanskar. यस सर. 10 सर. आपका आंसर आया. That हाँ is सर. in the first में 6 plus 9 is equal to 15. Similarly 8 plus 12 is equal to 20. Similar हो जाएगा 6 plus 8 is equal to 10. 4 plus 6 is equal to 10. Okay. In the question number 2, इसमें आप लोग फाइंड करो क्या होगा. 28G. 28G. What is the pattern? First number and last number in a column multiplied together, then the middle number answers coming, and in first Okay. C is there, and Okay. Let me then 3 into 9 comes 27, and similarly 7 into 3 comes 21. Similar that 4 into 7 comes 28. Okay, so 28 is the number, and C plus 1 is D. Okay, and D में plus 1 किया, that comes E. Okay, and I plus 2, that comes K, and K plus 2, that comes M. Okay, everyone is okay now, and that is D plus 3, that comes G, and plus 3, that comes J. So the answer is G. So final answer is 28G. Is everyone okay now? Okay. The answer number, question number 3 is here is 4, 5, 41, that is 5, 1, 2, that is 6, 7, question mark. Find these question mark numbers. Okay. Question number 4, that is
101, 43, 35, 15, 38. Okay. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर बताओ। 48 आंसर, 85 आंसर। ओके, 85 is the correct answer. The pattern is 4 square plus 5 squares comes 41, and second 1 square plus 2 square comes 5. Similarly, 6 square plus 7 square that comes to 85. So answer will be 85. Find this question mark numbers in question number 4. Similarly, question number 5, find the missing numbers in question number 5. That is 12, 18, 13, that is 6, that is 16, 32, 40, that is 8. 36, 18, 27. Find this missing number. Okay, everybody please answer. क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। सर सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है? आपका वॉइस नहीं आ रहा। Here is 56, and here 184, and here 34, here 48, here 43, 101, 35, 15, this 38. Okay, now is everybody okay? Find the question numbers, find answer in question number 6, that is 84, that is 14, that is 12, 81, 189. Okay, double 8, question mark, that is 11. Find the answer of question number 6. Okay, क्वेश्चन समझ में आ रहा आपको कैसे निकालना है? 6 का 16, 6 का 16. ओके, सब लोग बताएं, किसने बताया आपने? गौतम हर्षे। ओके, वेरी गुड. So what is the pattern for 16 answer? Sir, in first example that 84 is equal to 12 into 7 and half of 14 is 7. So there there we have to do half. So 11 into 8 is equal to 88. So it should be double like the first. So it is 16. In the second में 81 is equal to 9 9 into into 9. 9 into 9 9. into 9. Very good. And third, 88 is equal to 11 into 11 into 8. 8. 8. Answer should be double. Yes, sir. Okay, very good. Very good. सबको समझ में आया? Thank you, sir.
Yes. तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इफ अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, दैट इज 12 इंटू 14/2। जो गौतम ने बताया वही करेक्ट प्रोसेस है, 84, एंड सेकेंड इज 9 into 18/2 into is equal to 81, and similarly 11 into x by 2 is 88. So x is equal to 16. Okay. In question number 5, these जो bottom term are the HCF of the above numbers. Okay. That is HCF of these HCF of these is 6, एंड इसका HCF 8 आएगा, एंड इसका HCF क्या आएगा? व्हाट शुड बी द आंसर? 9. 9. ओके, तो एनीवन हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया किसी ने? दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी हैव ऐड 101, हम इसको ऐड करें 15 में, डायगोनल टर्म्स को ऐड करके दिस डायगोनल टर्म माइनस करते हैं, दैट्स जो मिडिल नंबर है वो आ जाता है। दैट मीन्स 35 plus 43, ओके, दैट कम्स 38। सिमिलरली इसमें प्रोसेस क्या होगा? 48 plus 184 minus 56 plus 34, दैट कम्स कितना आएगा? हाउ मच आएगा? कितना आएगा बताओ आप लोग, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आएगा? 144, 142. okay, 142. So Yes, sir. 142 142. is the correct answer. Okay. So missing terms in figure समझ में आया आपको? कोई इस तरीके से फिगर दे देगा बना करके, स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइन वाइन कुछ भी बना के दे सकता है, सर्कल बना के दे सकता है, ओके, कुछ भी बना के दे सकता है, उसमें आपको पैटर्न फाइंड करके जो मिसिंग नंबर है वो निकाल लेना है। ओके, एग्जाम्पल और दूं या आप लोग कर लोगे? ओके, 1 और 2 एग्जाम्पल्स और मैं दे देता हूँ आपको, उसमें आप क्लियर कर लेना। ओके, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 6 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, दैट इज 4, 9 and 6. Okay, similar 9, 16, 12. Okay, 16, that is 20. So what should be the answer of this? 25. 25. Yes, sir. तो 25 कैसे आंसर बताओ मुझे? 4 square is 16, and to come the multiplication 20, we should multiply by 5 square. Sorry, Okay, to multiply by 5, so 5 square is 25. very good. That means this 2 square, this 3 square, this 3 square, this 4 square, this 5 square, this, sorry, 4 square, this 5 square multiplied 4 into 5, 3 into 4, 2 into 3. Okay, so I think आपको सबको क्लियर हो गया। One last example is 15, 5, 82, 6. Okay, 9, 7, 65, 4,
ओके, नाउ समझ में आ रहा आपको? दैट इज 13, दैट इज 16, दिस 8 and this is 11. Find this numbers. Okay, like previous one जैसे मैंने आपको बताया similarly इसमें करना है. Okay, but इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होगा. Anyone solved question number 8? Like we have solved question number like 4 or 5. We have solved question number 4. Similar pattern is here, but कुछ division multiplication में कुछ different होगा, but pattern is similar. Like we have to do something in diagonal relationship. Okay, तो diagonal में है उसमें कुछ करना पड़ेगा. या अपोजिट में है उसमें भी कुछ करना हो सकता है, बट यू हैव टू फाइंड दैट पैटर्न. फॉर योर हिंट मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, सॉरी ऑप्शन दे देता हूँ. दैट इज ऑप्शन ए इज 48, ऑप्शन बी इज 72, ऑप्शन सी इज 35, ऑप्शन डी इज 120. ओके, फॉर आपको डायरेक्टली इस थर्ड जो फिगर बना हुआ है इसमें नहीं जाना है. फर्स्ट यू हैव टू वेरीफाइड दिस 1 and 2 फिगर्स. ओके, देन डायरेक्टली हम लोग इस पे जंप कर सकते हैं थर्ड वाले पे. फर्स्ट हमको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये 80 नंबर्स कहाँ से आया. इस 15, 5, 2 एंड 6 का कोई तो कनेक्शन होगा जिससे हम 18 आया. एंड सिमिलरली इस 9, 4, 7, 6 का कोई कनेक्शन होगा, 65 आया.
सिमिलर पैटर्न जो 1 एंड 2 में होगा, इस थर्ड वाले फिगर्स में भी वही पैटर्न होगा. So you have to find that pattern also. Okay. सर मैंने चैट बॉक्स में आंसर दिया. ओके, आंसर चैट बॉक्स में दिया, गलत है. मैंने देखा चैट बॉक्स में, दैट्स व्हाई मैंने ऑप्शन दिया आप लोगों को. ओके. सो देखो, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, इसमें सिंपल मेथड्स क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जो फोर कॉर्नर्स हैं, इन फोर कॉर्नर्स के बीच में रिलेशनशिप हमको निकालना पड़ता है. दैट इज 80 का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा, अगर हम इन सबको ऐड करने के बाद भी तो यहाँ पे 80 नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, इसमें अगर हमको ऐड मल्टीप्लाइड, अगर इसमें मल्टीप्लाइड कर दो 38 से ज़्यादा हो जाता. समझ रहे हो आप लोग, अगर मैं 10115 का या 35 इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता, दैट मीन्स ये 38 से ज़्यादा हो जाता. तो सिमिलरली इसमें देखो, अगर मैं 15 5 2 6 का मल्टीप्लिकेशन या करता हूँ तो 18 के अकॉर्डिंग आता है, सॉरी 80 के अकॉर्डिंग आता है. बट अगर मैं 15 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 करता हूँ तो किसी भी तरीके से ये 80 नहीं आता है. तो यहाँ पर जो प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं. तो अभी कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट मीन्स या तो डिवाइड वाला या मल्टीप्लाइड वाला. सो मल्टीप्लाइड के लिए 80 कैसे आएगा, दैट मीन्स अगर मैं देखूं यहाँ पे 15 प्लस 5 दैट्स कम 20 एंड 2 प्लस 6 दैट इज 8, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद 80 आ जाएगा मेरे पास. यस सर. सिमिलरली अगर मैं इस सेकंड फिगर की बात करूं, दैट इज 9 प्लस, फिर से रिपीट कर सकते हो. हाँ बिल्कुल, दैट इज जो पैटर्न होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हमको सबसे पहले कौन सा नंबर फाइंड करना है उसको देखना पड़ता है. ओके. और उस नंबर फाइंड करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि जो मिडिल नंबर है दैट इज 65 80, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 65 या 80 नंबर कैसे आएगा इसमें. फर्स्ट या तो हम थिंक करेंगे प्लस और माइनस करके, लाइक दैट वी हैव डू इस 4 क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया. समझ रहे हो. हाँ सर. ओके. तो प्लस माइनस करने से ये तो 80 आएगा नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा. दैट इज अगर हम चारों कॉर्नर प्लस कर लेते हैं तब भी ये 80 के इक्वल नहीं होने वाला. क्लियर. सिमिलरली अगर मैं इसमें 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 करूंगा, ये भी हमारा 65 के इक्वल नहीं होगा. दैट मीन्स जो प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट है नहीं लगने वाला, ये तो रॉन्ग है पूरा. तो हम यहाँ पे आएंगे, अभी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, ये दो कॉन्सेप्ट बचे. तो हम लोग जाते हैं डिवाइड या मल्टीप्लाइड पे, हम लोग मल्टीप्लाइड पे चले गए. ओके. मल्टीप्लाइड पे जाने पर दैट इज मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट पे आ गया. ओके. इसमें क्या किया मैंने, 15 एंड 5 ऐड किया, दैट्स का मतलब हमको 80 लाना है. तो 80 लाने के लिए हमको कोई ना कोई या तो 5 का मल्टीपल चाहिए, या 2 का मल्टीपल चाहिए, या 4 का मल्टीपल चाहिए. ओके. तो ये 15 से मल्टीप्लाइड करने से 80 कभी नहीं आएगा, किसी से भी मल्टीप्लाइड करो नहीं आएगा, 6 से मल्टीप्लाइड करने से नहीं आएगा. तो हमने क्या किया, 15 प्लस 5 को ऐड किया एंड मल्टीप्लाइड कर दिया 20 एंड 8 को. दैट इज इसको हमने ऐड किया, इसको यहाँ पर ऐड किया एंड मल्टीप्लाइड कर दिया इन दोनों को. दैट इज 5 प्लस 15 प्लस 5 20 एंड 2 प्लस 6 इज 8. सो इन दोनों का मल्टीप्लाइड करने पे कितना आया, 80. क्लियर, समझ में आया. 20 into 8 160 सर आता है ना. 160 आता है. ओके. ओके हाँ 160 आता है. तो फिर हमको ऐसा कर सकते हैं हम लोग,
सर और एक पैटर्न है। ये यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हम माइनस कर सकते हैं, दैट इज -5 कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा। 10। अभी 80 हो सकता है। हाँ अभी क्लियर? सिमिलरली अभी हमने यहाँ पे माइनस किया था ना, सिमिलरली अभी हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज 9 - 4, दैट इज 5, and 6 plus 7, that comes to 13. 13 into 5, that is 65. Okay, so first and second दोनों वेरीफाई हो गए। नाउ सिमिलर पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे, दैट इज 13 minus 11, that is 2, and 16 plus 8, that is 24. So answer should be 48. समझ में आया? अभी आप लोग बताओ, आपका कौन सा पैटर्न आपके दिमाग में स्ट्राइक किया, बताओ आप लोग। If Sir, 15 into 6 minus 7. 15 minus, बोलो बोलो, समझ में, मेरे को सुनाई नहीं दिया अभी। 15 into 6 minus 5 into 2. 15 into 6, okay, that is हाँ 15 into 6, that is 90, okay, हाँ minus 5 into 2. minus 5 into 2, that is 10. So 80 आ गया, 80 आ गया जी। सिमिलरली सर मैंने 9 भी वैसे ही into किया था, पर वो सर सेकंड में नहीं आया सर था। आगे वो पैटर्न कंटिन्यू होगा। 9 into 6, that is 54, माइनस, अब 54 से माइनस करने से कंटिन्यू कहाँ से हो रहा, नहीं हो रहा ना। यस सर, वो नहीं हो रहा है सेकंड में। So that's why मैंने बोला ना, फर्स्ट we have to verify the figure 1 and figure 2, then हम लोग वही सेम पैटर्न हम फिगर 3 में अप्लाई करेंगे। yes sir. क्लियर? समझ में आया? हाँ ओके, नाउ अभी ये टॉपिक में क्लोज करता हूँ, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज टोटली क्लोज करता हूँ। ओके, मैंने आपको जो सीट नंबर 1 दी है उसको आपको पूरा सॉल्व करना है, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज में सॉल्व करना है। अभी मैं उसी सीट का एडिशन दूंगा जिसमें आपका जो फिगर्स होंगे, मिसिंग टर्म्स इन फिगर्स होंगे। ओके, तो ये भी आपको सॉल्व करना। ओके, अगर कोई आपको डाउट होता है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मुझे समझ नहीं आया। Okay, so now we are starting today's the new topic is या new chapter बोल सकते हो, new topic बोल सकते हो, that is coding and decoding. Okay, that is second chapter, coding and decoding. Okay, so कोडिंग एंड डिकोडिंग में मेनली क्या होता है, देखो बच्चों, कोडिंग इज अ मेथड टू सेंड अ मैसेज टू रिसीवर, ओके, सच दैट द थर्ड पर्सन डजंट नो अबाउट इट। दैट मीन्स अगर मैं 1 to 1 किसी से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप में से, सपोज मैं क्रिस से बात कर रहा हूँ, ओके, तो 1 to 1 बात कर रहा हूँ, मैं कोई कोड डेवलप करूंगा एंड उस कोड को कैसे डिकोड करना है वो मैंने क्रिस को बता दिया, एंड मैं मैसेज क्रिस को सेंड करूंगा पब्लिकली, कोई भी उस मैसेज को देख सकता है। बट इफ क्रिस के पास वो पैटर्न है डिकोड करने का, देन क्रिस वो डिकोड कर सकता है, वो मैसेज पढ़ सकता है। एंड बाकी आप लोग हैं, मैंने आप लोगों को वो कोडिंग डिकोड करने का पैटर्न नहीं दिया है, देन आप लोग उस कोड को समझ ही नहीं पाओगे वो कोड है क्या। समझ रहे हो? दैट्स पैटर्न हम लोग आज स्टडी करेंगे, दैट दिस इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। समझे आप लोग? सिंपल लैंग्वेज मैंने समझा दिया। अब इसका अगर आपको लैंग्वेज लिखना है कैसे होगा, दैट इज कोडिंग is a method of sending a message to
receiver such that third person doesn't know about it. Okay, and coding language, and जो कोड होता है, that is code language is formed by certain rules and patterns. Okay, if we have to decode any code, अगर हमें किसी कोड को डिकोड करना है, that we have to know that pattern. Okay, इस पैटर्न में क्या करना पड़ेगा. Okay, समझ में आया आप लोगों को? सभी लोग को समझ में आया? Yes, sir. There are different type of coding and decoding. Type of coding and decoding. Okay, number one is letter to letter coding. That letter coding. Number second, letter number coding. Number third is to code letter or words in puzzle form. Okay, number four, to code some objects in puzzle form. कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पजल फॉर्म में कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज टू कोड एज पर गिवन टेबल और कॉलम फॉर्म. ओके, कोई कॉलम या टेबल दे दिया, उसमें कुछ पैटर्न लिख दिया, उसके फॉर्म पे हम लोग कुछ कोड कर सकते हैं. ओके, सो टुडेज वी आर स्टार्टिंग द लेटर टू लेटर कोडिंग. ओके, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग लेटर टू लेटर कोडिंग. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सर एग्जांपल पिछली आपको स्लाइड दिखाओ ना एक बार. ओके, ओके सर. नाउ फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, आप लोग सॉल्व करोगे, मैं उसका आंसर बताऊंगा. इफ इन एनी कोड लैंग्वेज, ओके, V O Y A G is coded as F I B A P X. Okay, now question is, how is CROWN crown coded in the language? Okay, in that language. Okay, समझ में आया? Then option is, for example, O X P T D. ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ. D T P Y O C O I P T D, and option D is D T
PXO. ओके, सो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लिसन केयरफुली. ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट द लेटर्स. ओके, जो भी लेटर्स हैं हमको उसको केयरफुली राइट करना है इस तरीके से, VOYAG. ओके, एंड इसी के जस्ट सामने हमको राइट करना है इसका कोड जो इसका दिया है FIBATX. ओके, इस तरीके से राइट किया. अभी वी हैव टू फाइंड दैट कि जो V ऑप्शन है यहाँ पे V लेटर है, V लेटर इस कोड में किसके नियर है, किसके पास में है, दैट इज X के पास में है ना. हाँ. ओके, सो V का रिलेशन हम X से फाइंड करेंगे. ओके, एंड O किसके पास में, P के पास में, O का रिलेशन हम P से फाइंड करेंगे. सर उल्टा Okay. करना होता है क्या? किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, उल्टा सीधा, बिकॉज हमको पैटर्न फाइंड करना है ना. उसने कोड बना के दे दिया, वो उल्टा बना के सकता है, सीधा बना सकता है, मतलब आगे पीछे बना सकता है, कैसा भी बना सकता है, बट हमको पैटर्न फाइंड करना है. हम इसका पैटर्न V का F से, O का I से, Y का B से इस तरीके से करेंगे, बट ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. ओके, मे बी इससे करेक्ट जो हमारे ऑप्शन दिए गए इसमें से आंसर ना आए, कोई अलग ऑप्शन अलग आंसर आ जाए. ओके, सो करेक्ट अप्रोच इज वी हैव टू फाइंड दैट जो नियर अबाउट लेटर्स होते हैं उसको फाइंड करना होता है. दैट मीन्स हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे V के पास में X है, O के पास में P है, Y के पास में A है. दैट मीन्स Y के पास में A है. किसी को समझ में आ रहा कैसे है ये? हाँ. सीरीज रिपीट हो गई। वेरी वेरी गुड, सीरीज रिपीट हो रही है. ओके, एंड A के पास में B है, G के पास में I है, एंड E के पास F है. F है. ओके, क्लियर, एवरीवन इज क्लियर. सो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ Yes. यहाँ पे, इनके बीच में क्या रिलेशन है, लाइक E एंड F के बीच क्या रिलेशन है, कितने पॉइंट का रिलेशन है, दैट इज +1. इज एवरीवन ओके ना? सिमिलरली E एंड G एंड I के बीच में कितना रिलेशन है, +2. सिमिलरली A एंड B में रिलेशन कितना है, +1. नाउ हमको जो पैटर्न है वो दिख गया, +1 +2 +1, मे बी यहाँ पे नेक्स्ट +2 होगा. हमको पूरा करके देखना है, दैट मीन्स जितना भी लेटर दिए हैं सबका करके देखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमको कोड फाइंड कर रहे हैं हम लोग. दैट मीन्स Y एंड A में डिफरेंस कितना है, YZ A, दैट इज +1 +2, सो डिफरेंस इज +2. ओके, सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज O एंड P में कितना डिफरेंस है, दैट इज +1. एंड सिमिलरली जो V दिया गया है, V और X में कितना डिफरेंस है, दैट इज +2. क्लियर है ना सब लोग? Yes sir. ओके, नाउ अभी हमको फाइंड करना है कि क्राउन का पैटर्न क्या होगा. ओके, दैट इज क्राउन का पैटर्न. ओके, दैट वी हैव टू राइट द क्राउन, CROWN हमने राइट किया. नाउ जो N है, N में क्या करेंगे, हम +1 करेंगे. +1 क्या होगा यहाँ पे, O. सिमिलर W में +2 करेंगे. Q सर, लेकिन वही हम्म, वही क्यों लेकिन? वही क्यों, बिकॉज हमने जो पैटर्न दिया है ना, ये कोड है उसका, इसलिए मैंने +1 किया है. ओके सर. ओके, अगर हाँ. हमको ये कोड नहीं पता होता बेटा, ये कोड नहीं पता होता, देन हम ये +1 +2 कैसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना. हमको आइडिया ही नहीं कि हमको क्या करना है. तो हाँ. इसीलिए उसने एक एग्जाम्पल दिया कि इफ VOYAG, ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. क्वेश्चन पढ़िए केयरफुली. इफ इन एनी कोड लैंग्वेज VOYG इज कोडेड एज इतना. ओके, इसको इस तरीके से कोड किया गया है
Okay, Gautam. So how's the crown coded in that language? उसी लैंग्वेज में पूछा उसने, इसका मतलब उसी लैंग्वेज का पैटर्न हमको फाइंड करना है। तो वो पैटर्न क्या है? +1 +2 +1 +2 है। समझ में आया? मे भी हाँ डिफरेंट पैटर्न सर। हो सकता है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ बट हमको पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज उसने एक रिलेशन दे दिया हमको। वो रिलेशन इसलिए दिया कि हमको उससे हमको पैटर्न निकालना है। सो फॉर एन के लिए यहाँ पे +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, एंड डब्ल्यू में +2 करेंगे तो क्या आएगा बताओ? वाई आएगा। एंड ओ में फिर +1 करेंगे क्या आएगा? पी आएगा। देन नेक्स्ट आर में क्या करेंगे? +2 करेंगे, दैट इज पी आएगा। ओके, देन सी में क्या करेंगे? +1 करेंगे, सो क्या आएगा? ई पी आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ओ वाई पी टी डी। ऑप्शन में है कोई ओ वाई पी टी डी? सी ऑप्शन है इज द। ना। सी। ओके, समझ में आया? यस लाइक सर। सिमिलरली मैं एक पैटर्न आपको और दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना। ओके, थोड़ा सा सिंपल होगा इससे। दैट इज एग्जाम्पल 2। इफ एनी कोड लैंग्वेज, मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, इफ एनी कोड लैंग्वेज MO monkey is written as XDJ ML, sorry, MNL। ओके, सर एक्स डी जे है ना वो। हाँ जे। ओके, सो व्हाट इज द कोड ऑफ टाइगर? ओके, monkey is written as XDJ MNL। ओके, पहले आप ऐसे लगाइए। अगर आपसे नहीं हो रहा है देन मैं फॉर आपको हिंट के लिए ऑप्शन दे दूंगा आपको। आप लोग बिना हिंट के लगाइए पहले फर्स्ट। If any code language monkey is written as XDJMNL, okay, so how is the tiger written in that code language? सर आंसर भेजा है चैट बॉक्स में। Okay, very good। गौतम, आपका आंसर सही है। थैंक यू सर। बाकी लोग, आप लोग भी बताओ कि आपका आंसर कैसा आया। क्रिस, प्रतीक, संस्कार, यशराज, आप भी बताओ आपका आंसर कैसा है, क्या आया आपका आंसर? यशराज, हाँ सर। आंसर आया आपका? सर निकाल रहा हूँ। निकालो। बहुत संस्कार, 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 आपका आंसर आया नहीं आया? मेरी आवाज सुन रहे हो?
या मोबाइल रख के सो गए हो क्या? मेंटल एबिलिटी उतना टफ चैप्टर नहीं है, इसलिए इतना पीसफुली मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, सर वो आंसर में हाँ आंसर आपका थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है, आप उसको देखिएगा। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दैट इज, सर भेज दिया है। हाँ यस राज, आंसर इज सही, आपका आंसर सही है। दैट इज, देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। दैट इज MO MON KEY. Okay, monkey is written as XDJMNL. Okay, so first of all we have to find the closest letter. Okay, M के closest क्या है? M के closest क्या है? M के closest L है ना, L. ना कि X। तो कोड कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा? यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, M and L से। ओके, एंड Y के क्लोजेस्ट क्या है? X। सो हियर द डिफरेंस इज -1। ओके, एंड इसमें डिफरेंस कितना है? -1 इसमें डिफरेंस कितना है? -1। सो लाइक दिस, सारे में -1 फॉलो हो रहा है। अब बताइए, सब में -1 फॉलो हो रहा है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? No doubt, sir. सो द TIGER, इसमें अगर मैं -1 करूंगा, दैट्स कम्स S आएगा यहाँ पे। इसमें -1 किया मैंने, क्या आएगा? सर क्यों आएगा ना उधर? सॉरी, हाँ Q आएगा, Q आएगा यहाँ पे। यस सर। ओके, एंड E से -1 करने से क्या आता है? डी। D आएगा। ओके, सिमिलरली G में देखा जाए तो इसका -1 करने से क्या आएगा? एफ। F। I के लिए एच। H, एंड T के लिए एस। S। सो आंसर इज QDFHS। ओके, करेक्ट आंसर यशराज, आपने उल्टा दिया था, बिकॉज इसमें आपको कोड देखना है। इसने अगर इसका लास्ट लेटर इसका सर एक फर्स्ट बार लेटर एक्सप्लेन, हो है। और एक बार एक्सप्लेन करो। Okay, so listen carefully. That means, first of all, in this type of question, we have to find the closest letter of जो गिवन हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज मंकी एंड XDJMNL दिया गया है। इस दोनों रिलेशन में हमको क्लोजेस्ट लेटर फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट मंकी का क्लोजेस्ट, इसमें मंकी में जो M है, M का क्लोजेस्ट L है, O का क्लोजेस्ट N है। तो सिमिलरली हमने देखा कि इसका अपोजिट सीरीज, इसका रिवर्स सीरीज फॉलो हो रही है। समझ रहे हो? दैट इज, अगर मैं Y की बात करूं, इसका लास्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर हो रहा है FI। ओके, एंड इसका फर्स्ट लेटर इसका लास्ट लेटर हो रहा है। क्लियर? सिमिलरली जो हम कोड बनाएंगे, T का कोड बनाएंगे, T का जो कोड होगा वो लास्ट में आएगा, बिकॉज इसका फर्स्ट लेटर इसके लास्ट में जाएगा, एंड इसका जो लास्ट लेटर होगा इसका फर्स्ट में जाएगा। समझ में आया आपको? यस राज, समझ में आया?
यस राज, सर हाँ सर समझ में? ओके, तो सिमिलरली जब हम इसको कोड करेंगे, लाइक आर, तो आर का कोड क्यू हो गया, ई का डी हो गया, तो कोडेड हमारा फाइनली कोड करने के बाद क्यू डी एफ एस एच आया। ओके, दैट मीन्स जो टी का कोड है वो ये है, इस तरीके से ये करेक्ट फॉर्म है। यस राज ने मुझे आंसर दिया था एस एच एफ डी क्यू, बट ये आपका रिवर्स, आपने सीधा आंसर दे दिया, बट आंसर क्या है उसका, रिवर्स ऑर्डर में आंसर है, बिकॉज टाइगर में जो आर वाला वर्ड है, इसका कोडेड लैंग्वेज का जो लेटर है वो लास्ट फर्स्ट पे आएगा। समझ रहे हो ना? एक हाँ एग्जांपल और दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि उसमें क्लोजेस्ट लेटर कौन सा है, उस तरीके से आपको कोडिंग करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल that is heater is coded as KVD QHO. Okay, so what is the code of cooler? इसका कोड निकालें। ओके, फर्स्ट हमको फाइंड करना है कि जो क्लोजेस्ट लेटर है वो स्टार्टिंग में है या फर्स्ट में है। दैट मीन्स इसका जो लास्ट लेटर एंड इसका फर्स्ट लेटर है उसका रिलेशन फर्स्ट में है या लास्ट में है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन these two numbers. Is everyone clear now? So anyone have answered? Yes, sir. So what is the correct answer? बताओ। Sir, FLRIHO. Okay, SL. Sir, FF. Okay, one second. FL RIHO. RIHO. Okay, so everyone, सबका आंसर यही आ रहा है।
So what is the correct answer? First, before solving this question, we have to find the relation. We have to find the closest number. Okay, that is HEATER. Okay, KBDQHO. The closest number, the closest letter of H is K or O. Let me know. K. K. So the closest number is K. That is K. The difference or direction, forward direction or backward direction. What is Plus the 3. difference? Plus 3. Similarly, E is the closest to B. Minus 3. Okay, that is minus 3. Okay, like हम लोग सही डायरेक्शन में है. Okay, that is what is the Plus 3. pattern? That means हम लोग सही डायरेक्शन में. Okay, अगर Yes, हमको sir. पैटर्न मिल रहा है, that means हम लोग सही Minus डायरेक्शन में. 3. माइनस 3. ओके, पर ई की बात करें तो यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3. सिमिलरली अब ना हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? एच से. तो फर्स्ट हमको सी से स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स इसका फर्स्ट से रिलेशन है. क्लियर ना? इज एवरीवन क्लियर? दैट मीन्स COOLER. दैट मीन्स दिस C. Very good, Gautam. This C is plus 3. Thank you, sir. So the answer is F, and this O is minus 3. So the answer should be O minus 3. Answer क्या होगा? And this O plus 3. What is the answer? बोलो आप लोग. FLRIHO. F, L and R, I, and next E, H and R plus 3. इसको करने से O. Okay, that is minus 3 Yes, होगा. sir. Okay, इसमें प्लस 3. Okay, is everyone is clear ना? सबको समझ में आया ना? गौतम, Yes, sir. क्रिस, Yes, sir. प्रतीक. I got it, sir. Yes, sir. ओके, संस्कार, Yes, sir. सिद्धेश, सिद्धेश Yes, sir. एंड यशराज. Yes. Yes, sir. Okay, so now moving forward to the next type of question. Okay, इसमें आप लोग एक क्वेश्चन और करना. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. JUMP is coded as KVLO. So what is the code of GIVE? This is the last example of this type of questions. Okay, because we have covered the letter to letter code formation. Okay, Sir, HJUD. HJUD. UD. D. So पैटर्न क्या आ रहा था इसमें? G के बाद +1. +1 I के बाद +1 +1 -1 -1 -1. -1. Yes, sir. Okay. +1 +1 -1 -1. Yes, sir. Everyone is okay now? So now moving forward, the next type of question is that is question number 5.
if D is equal to 4 and COVER cover is equal to 63, then BASIS. What is the basis numbers? Okay. Option A is 49, B is 50, C is 54, and D is 55. Find the number of bases. Okay. Question number 6. Cloud is called white. White is called rain. Rain is called green. Green is called air. Air is called blue. Blue is called water. So question is, where do the birds Sir, इसका आंसर B है 50. 50? इसका आंसर 50 होगा. Is everyone okay with this answer? Because similarly in alphabet, D is written as 4 and COVER, the addition of this letter, that is C, is 3 plus 15 plus 22 plus 5 plus 18, that is 63. Similarly, basis का क्या हो जाएगा? 2 plus 1 plus 19 plus 9. So the answer is 50. Is everyone okay? Sir, 6 का blue है. 6 का आंसर, फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ. 6 का ब्लू आता है सर. सर वो ब्लू आंसर इज, एक बार बताओ. कौन सा क्वेश्चन? 50-50 वो 5th 50 वाला वाला. 5th क्वेश्चन. That is in the cover, that is cover word. In cover word में क्या लिखा है इसमें? 63. How it comes? Okay. So when we are going to sum of the particular letters, हम हर एक पर्टिकुलर लेटर्स का सम करते हैं. दैट इज C का कोड 3 एंड O का कोड 15, V का कोड सर वो 22, E 5th का. में आपने D के पीछे क्या लिखा है? D के पीछे 5th में ये यहाँ पे सर वो 15 वो लिखा है ना, 3 + 15 + वो 22 लिखा है क्या? हाँ हाँ 3 + 22 15 + 5 + 22 + 5 + 18. ये आपको आइडिया लगना चाहिए ना. दैट इज, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ आप यहाँ पे देखिए, COVER. ओके. दैट इज 3 + 15 + 22 + 5 + 18, that is 63. क्लियर ना? सिमिलरली तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिस का आंसर 2 + 1, that is 2. इसके लिए 2, इसके लिए 1, इसके लिए +19 + 9 + 19. So answer is 50. Now 50 is clear now? यस यस. Okay. So question number 6 is, if cloud is called like cloud is called white, okay, and white is called rain. Rain is called green.
green is called air, air is called blue, blue is called water. Okay, सो ये कोड हमको दिया है, दैट मीन्स जो कोड दिया है इस टाइप के क्वेश्चंस में जो थर्ड टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा ना, दैट मीन्स हमको पजल्स दे दिया, वर्ड में या लेटर्स में पजल्स दे दिया. ओके, देखिए that is we have covered the letter to letter and letter to number coding and letter to word in puzzles. Okay, now हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं. Okay, that is letter to word puzzles. Okay, cloud is called white, white is called rain, rain is called green, green is called air, air is called blue, and blue is called water. So question is where do the bird flies? Bird कहाँ पर fly होता है? That means air में. Word is fly in air, word is fly in air, so air is called blue, air is called blue, so the answer is blue. Okay, clear now? Now Yes, sir. question number 7. सर एक बार दिखाओ ना, लिख रहा था. 7. Okay, Okay. question number 7, that is इसमें मैं शॉर्ट में लिखता हूँ अभी आप उसी क्वेश्चन को. दैट इज रूम इज कॉल्ड हाउस. ओके, house is called roof. Okay, roof is called floor, floor is called terrace. So the question is where person stand on. Okay, person कहाँ पे stand होगा, इसका आंसर Roof. बताओ. Terrace. 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 stand होगा that is floor पे, and floor is called terrace. Okay, so answer is terrace. Okay, is everyone clear now? Yes. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूँ, आप इसको कुछ सॉल्व करिए. ओके, थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट आप लोग सॉल्व कर लोगे. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू. ओके, in certain code 256 means red color chalk and 589 means green color flower and 245 means white color chalk. Okay, so question is what digit
in that code does means white. That means white जो वर्ड है इसका कोड क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. ओके, आप लोग फाइंड करिए. 4 आता है 4 4 आता है. ओके, 4 एक ऑप्शन हो गया. ओके, एनीबॉडी द नेक्स्ट 4. नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करिए. सर 4 ही आता है. ओके, 4 आता है. तो कैसे आया 4? सर वो रेड कलर चौक और वाइट कलर चौक में कॉमन कलर और चौक है, और नंबर में कॉमन 2 और 5 है, तो 4 आता है इसलिए. ओके, वेरी गुड. तीनों में कलर कॉमन है. कलर कलर इसमें है, कलर इसमें है, कलर इसमें है, ये तो 2 आता है. कलर का नंबर आता 5 है. हो जाएगा. एंड चौक इसमें है एंड चौक 2 इसमें है. द आंसर चौक का आंसर इज 2 हो जाएगा. सो वाइट बचा हुआ इसमें है, देन वाइट इज 4 4 4. ओके, समझ में आया सबको? वेरी गुड. नाउ the next type of questions in this chapter is like एक टेबल दिया है मैंने आपको, मैं आपको एक कॉलम दे रहा हूँ. कॉलम 1, कॉलम 2. ओके, डिजाइन, सर वो सम एक बार दिखाना. क्या क्या? सर वो सम एक बार दिखाओ ना, मैंने लिखा नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ना. हाँ हाँ. मैं आपको सीट दे दूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम. ओके. पीडीएफ पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग लिख सकते बाद में. ओके, So this is next question, na? हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? इट 9 इज 9. 9. ओके, इट इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, ओके. सो क्वेश्चन अभी ये क्या दिया, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया क्वेश्चन के बारे में. ओके, इन सर्टेन कोड, इसमें क्या दिया मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना. इन द फॉलोइंग, इन दिस क्वेश्चन, टू कॉलम्स, कॉलम्स 1 एंड कॉलम्स 2 गिवन है. कॉलम 1 में
कोड दिया गया, वर्ड दिया गया, दैट इज डिजाइन। इस डिजाइन वर्ड में इसका डी का कोई कोड होगा। इसमें सपोज डी का कोई कोड यू है या के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट इन ऑर्डर। ओके, दैट मीन्स डी का कोड के भी हो सकता है, एल ई का कोड यू भी हो सकता है, एच का एन का कोड यहाँ पे बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, समझ में आया? दैट मीन्स डिजाइन, inform, mother, rights, tailor, and guidance is coded as in this form. Okay, but they are in jumbled form. Okay, jumbled means क्या है कि आगे पीछे लेटर्स हो सकते हैं। ओके, नॉट इन ऑर्डर। सर कॉलम में F में लास्ट क्या लिखा है? VZ वी C जेड सी जे एल के। दैट मीन्स जितने यहाँ पर लेटर होंगे उतने यहाँ पर लेटर होंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं। ओके, अनइवन वाला नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 होंगे। Okay, so first question in this based on this coded language, that is A, what is the code for letter N? N लेटर के लिए क्या कोड होगा, आप बताओ मुझे। अभी देखो इसमें क्या करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, ओके, इन क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड्स में क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर लेटर एन। ओके, इस लेटर एन के लिए हमको कोड निकालना है। दैट मीन्स जिसमें एन हो वो हम आइडेंटिफाई करना है। दैट इज इसमें एन है एंड इसमें एन है, अदर देन किसी में एन नहीं है। ओके, सर वो इनफॉर्म में ना, अच्छा, इन इनफॉर्म फॉर्म में, इन सर फॉर्म जी आता है क्या? जे अभी मैं देखता हूँ क्या आएगा आंसर। ओके, सो दैट इज इस पर एन है। अब इस एन का कोड क्या हो सकता है, इस इसमें एंड इस ग्राउंड में जो गार्डन लिखा हुआ है, इस गार्डन में जो तीनों में कॉमन लेटर्स होगा वो एन का कोड होगा। नाउ हमको देखना है दैट इज तीनों में कॉमन क्या है। इस फर्स्ट में बात कर रहा हूँ डिजाइन एंड इन्फॉर्म की बात कर रहा हूँ। दैट इज डिजाइन, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू नहीं है। दैट इज इस इन दोनों में कॉमन के दिख रहा है मुझे अभी, एंड बी दिख रहा है अभी। के ओके, ओके, बी एंड के दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, और कोई लेटर कॉमन नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा ना आपको? दैट मीन्स एन का क्या हो सकता है, बी हो सकता है और के हो सकता है। फर्स्ट टू से बात कर रहे हैं। एवरीवन इज क्लियर ना? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ना? यस क्या यस है? नाउ द फाइनल बात कर रहे हैं गार्डन की। इस गार्डन में हम कंसिडर कर रहे हैं एन की बात। ओके, नाउ इस एन में देखो, इस एन में इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, जो डिजाइन एंड इनफॉर्म में कॉमन होगा, इस पर भी वही। के इसमें तो बी लेटर है नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सी है। के तो एन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, के, बिकॉज के इज कॉमन इन थ्री ऑल ऑफ दीज थ्री लेटर्स। ओके, दैट इज डिजाइन, इनफॉर्म एंड गार्डन, तीनों वर्ड में एन लेटर इज कॉमन है एंड एन का कोड इज के। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर ना? So the next question is question number B. Okay. So what is the code of F? F का कोड निकालिए। एंड क्वेश्चन नंबर C में निकालना है what is the code of O? एंड क्वेश्चन नंबर D में निकालना है what is the code of S? ये क्वेश्चन आपको फाइनल करना है बिफोर लिविंग टुडे। ओके, सर ओ का वाई आता है। ओ का
Y आता है. y आता है. ओके, सर एफ सिर्फ इनफॉर्म में है ना? f का सिर्फ इन फॉर्म में है. ओके, एंड और किसी में नहीं है. सो देखो, फॉर f के लिए इन फॉर्म में f है, तो इसका मतलब बाकी किसी में नहीं. तो इस कोड में जो एक लेटर होगा जो बाकी किसी पर भी नहीं होगा, वो लेटर आपको फाइंड करना है. दैट मीन्स कौन सा लेटर है वो आप फाइंड करिए. सर क्यू है. क्यू. क्यू बाकी किसी में क्यू है क्या? नहीं. बाकी. सो द फाइनल आंसर फॉर एफ इज क्यू. क्लियर. सिमिलरली ओ के लिए सर फाइंड एफ का करो. सी आता है. एफ का सी. सी नहीं आएगा बिकॉज सी यहाँ पर भी है. हाँ बिकॉज सर. सी यहाँ पर भी है. यस सर. पी एफ आता का है. एफ का क्यू आएगा. ओके, बिकॉज क्यू इज नॉट, किसी पर भी नहीं है क्यू. सर एस का यू आता है. यू. एस का यस सर यू आता है. यू. सो एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ना. Yes, sir. तो टुडेज द चैप्टर इज ऑलमोस्ट खत्म हो गया. अभी हमको इस चैप्टर में कुछ जो मिसिंग टर्म्स, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी मिसिंग, या कुछ नया मेथड्स होंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बता दूंगा. बट टुडेज मैं आपको एक सीट भेजूंगा. ओके, बेस्ड ऑन द कोडिंग एंड डिकोडिंग. उस सीट में आपको फाइंड करना है एंड वो सीट आपको सॉल्व करना है. एंड और उसके साथ साथ जो सीट नंबर 1 दिया उसको भी सॉल्व करना है. ओके. Okay. So anyone have any doubts today's lecture? नो सर. नो सर. So shall we, हम लोग आज स्टॉप करें लेक्चर. Okay, sir. Okay, so bye Okay, sir. everyone. Okay, Bye, बाय sir. सर. थैंक यू. बाय सर. Thank you, sir. sir.